Bismillahirrahmanirrahim. Students, next question number 14 is related to the topic factorization. So before starting the question number 14, I will let you people know about a little about factorization. So look at the whiteboard, the process of resolving or breaking an algebraic expression as a product of two or more common factors is called factorization. So there are many methods for the factorization of algebraic expressions, but here I will explain only 2 or 3 methods. Later on in chapter 5 we will discuss about factorization in detail, because chapter 5 is entirely about this topic. So first example. So what do you mean by factorization? The process of resolving or breaking down an algebraic expression as a product of two or more common factors is called factorization. For example, a square plus 6 times ab plus 9b square, it is an algebraic expression. It is a perfect square, so we are to use here the perfect square method for its factorization. So a to the raised power 2 is a whole square of a plus 2 formula का है. So 2 times the first term, that is a, the second term, that is 3b, and here 3b whole square. अब ये फॉर्मेट आपका बन गया a square plus 2ab plus b square. So it is equal to a plus 3b whole square, or we can write as a plus 3b into a plus 3b. So students, a plus 3b and a plus 3b are two factors of a square plus 6ab plus 9b square. Similarly, we can say that a square plus 6ab plus 9b square is the product of a plus 3b and a plus 3b. Yani these two are factors of this, and this is the product of these two factors. Now the next example is 16x square minus 25y square. Here we will use the method of difference of squares. So 4x whole square minus 5y whole square. So once they are sum, 4x plus 5y and 4x minus 5y. Now dear students, 4x plus 5y and 4x minus 5y are the two factors of 16x square minus 25y square. On the other hand, we can also say that 16x square minus 25 times y square is the product of 4x plus 5y and 4x minus y, 4x minus 5y. यानी आप गौर से देखें कि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं और ये अकेला इनका प्रोडक्ट है. सो प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन आर टू inverse processes. Let's come the example number 3. X cube plus y cube. It is a cubic polynomial, an algebraic expression, degree 3. So x to the raised power 3, x whole cube, y to the raised power 3, y whole cube. Now x plus y into square of the first term minus product of the terms inside the cube, xy plus y whole square. So x plus y times x square minus xy plus y square. Now dear students, you have resolved x cube plus y cube into two factors. So इसका पहला फैक्टर x plus y है और दूसरा फैक्टर x square minus xy plus y square.
So similarly we can say that x plus y and x square minus xy plus y square are the two factors of x cube plus y cube. On the other hand, you can also say that x cube plus y cube is the product of x plus y and x square minus xy plus y square. The last example is a cube minus b cube. We can write as a whole cube minus b whole cube. So a minus b into square of the first term, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट्स without any power, or plus square of the second term, that is b. So the factors will be a minus b into a square plus ab plus b square. Now students, a minus b and a square plus ab plus b square are the two factors of a cube minus b cube. Similarly, you can say that a cube minus b cube is the product of a minus b and a square plus ab plus b square. So this is a brief introduction about factorization. Now we will start the question number 14. I am to rub these examples as well as definition. Factorize. Question number 14, part 1. Factorize x cube minus y cube minus x plus y. So first of all, we will, before applying the formula, we will separate its groups. X cube minus y cube, one group, that is related to the cube. Minus कॉमन करेंगे, x नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव y. पहला स्टेप हमारा ये है, हम इसकी सेपरेशन करेंगे. नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई द फॉर्मूला a क्यूब minus b cube here. So according to that formula, it will be x minus y into square of x. साइन चेंज हो जाएगा. अभी रिसेंटली मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में ये मेथड इसका एक्सप्लेन किया था. तो नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड वी आर टू गो फॉर देयर प्रोडक्ट, यानी x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस square of the second term, that is y. So y का square, bracket close. The other factor will be written as it is x minus y. Now students, x minus y into x square plus xy plus y square, this as it is x minus y. अब आप गौर से देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें जो एक चीज कॉमन नजर आ रही है वो x माइनस वाई है. अब हम इस x माइनस वाई को कॉमन करेंगे, सो वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद x माइनस वाई. कॉमन करने के बाद यहाँ हमारे पास x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस, जब आपका पूरा फैक्टर कॉमन हो जाता है तो उसकी जगह फिर आपका 1 बचता है, 0 नहीं बचता. यानी इस कॉमन फैक्टर ने इन दोनों को डिवाइड करना होता है. तो अब आपका फाइनल जो आंसर है वो आ गया है कि देयर आर टू फैक्टर्स. ये पहला फैक्टर इसका है और ये वाला फैक्टर जो है ये दिस एज ए होल इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स, ये इसका दूसरा फैक्टर है. तो यानी आपने इस एक्सप्रेशन को 2 इक्वल फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया और यही अब हमने इसके सेकंड पार्ट में भी करना है. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स. There are only 2 parts of this question. The other part is also very simple and short. That is 8x cube
माइनस 1/27 y क्यूब। आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो फिर एक दफा देखें आप, a square minus b square are two factors, a plus b, a minus b, these are the two factors, a cube plus b cube, it's two factors, a plus b, a square minus ab or plus b square, a cube minus b cube, these are the two factors, a minus b। तो लिखने का तरीका देखें, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके ऊपर हाथ रख लें और देखें नीचे क्या बचा हुआ है, a माइनस बी बचा हुआ है, वो लिख दिया एज इट इज। इसके बाद अब आपने इसे भी गायब कर देना है और ब्रैकेट में आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर। अब आपने पीछे नहीं जाना, इससे सारा लिखना है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, सिंपल प्रोडक्ट विदाउट इट्स मल्टीप्लिकेशन बाय 2 ए बी, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब ये है इसके अंदर फॉर्मूला आपने जो अप्लाई करना है, एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला है और एक क्यूब वाला फॉर्मूला है। तो अब आप देखें इसमें, पापा ये इधर ना जब आप आते हैं तो आगे आ जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हाथ आ ऐसे करके ले हैं, लिखना है। हाँ हाँ ठीक। ठीक है चलो। Now 8x cube, it is the cube of 2x minus 1 over 3y whole cube। अब ये पहला स्टेप है, आपने इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a रिप्रेजेंट कर रहा है 2x को और b रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3y को। अब आपने क्या करना है, उसी तरह इस क्यूब को गायब कर दे। तो देखें नीचे जो टर्म्स हमारे पास बची हुई हैं वो आ जाएंगी 2x माइनस 1/3y, पहला स्टेप तो ये है। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी 2x का स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू यानी 2x इंटू 1/3y, और फिर उसके बाद प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1/3y का होल स्क्वायर, और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको जस्ट, सो 2x माइनस 1/3y इंटू 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2x over 3y plus 1/9y square bracket close। Dear students, this is the answer, and you can say that there are two factors of this cubic polynomial, cube algebraic expression. It is not a polynomial. 2x minus 1/3y, this is the first factor. The second factor is 4x square plus 2x/3y plus 1/9y square. This is the second factor. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब आपने आना है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, यानी टोटल पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको वो 27 होंगे और आपने उनमें से 18 सिलेक्ट करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट्स। दूसरे लफ्जों में ये क्वेश्चन नंबर 14 का रिवर्स है, यानी आपको फैक्टर्स दे रखे उसने
और आपने उनको कंबाइन करके थ्रू फार्मूलाए उनके प्रोडक्ट लेके आना है, यानी उसे फाइनल लास्ट एक सिंगल टर्म में लेके आना है. फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज. विदाउट फार्मूलाज आप नहीं करेंगे, यूजिंग फार्मूलाज. फार्मूलाज कौन से हैं? जो आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन्हीं को यूज करेंगे. पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द रेज पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द रेज पावर 4. नाउ डियर स्टूडेंट्स, the first factor as it is x square plus y square. अब आप देखें जरा गौर से, x टू द रेज पावर 4 को मैं अगर ऐसे लिख दूं x2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज. अब आप जरा टैली करें इसको कि ये आपका नंबर 3 फार्मूला से टैली कर रहा है टोटली. अगर आप गौर से देखें 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3. अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह a लिख दें और फार्मूला नंबर जो है 2 उसमें देखें, अगर a की जगह एक्स स्क्वायर आ जाए और b की जगह वाई स्क्वायर आ जाए तो ये बन जाएगा a प्लस बी. ये लिखा हुआ है a प्लस बी. फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर की जगह अगर a लिख दें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, हेयर a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी b जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई स्क्वायर को. तो अब आप देखेंगे टोटल पूरी चीज जो आपकी है यहां से यहां तक, जिस तरह ये चीज पूरी की पूरी ये a क्यूब और प्लस b का क्यूब बन जाता है, इसी तरह इट विल बिकम क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी x2 का होल क्यूब साइन ये वाला प्लस और y2 का होल क्यूब, और अब बाकी सारा जो है वो आपका प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है. तो ये फाइनल पूरा इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया. अब लास्ट स्टेप आपका आ जाएगा x टू द रेज पावर 2 3s are 6 प्लस y टू द रेज पावर 2 3s are 6. यानी ये है वो बड़ा एक्सप्रेशन कि अगर इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स आएंगे. यानी हमें अब फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमने फॉर्मूला यूज करते हुए उन्हें एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है. तो यू कैन से दैट x टू द रेज पावर 6 plus y to the raised power 6 is basically a product of x square plus y square and x to the raised power 4 minus x square y square plus y to the raised power 4. यानी ये इनका प्रोडक्ट है और ये दो इसके फैक्टर्स हैं. यानी दोनों जो हैं ये रिवर्स प्रोसेस है कि these two are factors, this is the product, this is the product and these two are its factors. यानी फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इनके लिए ये तीनों फार्मूले जो लिखे हुए आपके यही यूज होंगे. अब इसका हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 15 क्वेश्चन. पार्ट 2 x cube minus y cube, the other factor is x to the raised power 6 plus x cube y cube plus y to the raised power 6. Now dear students, the first factor will be written as it is. अब आप देखेंगे और से x पावर 6 है तो x स्क्वायर होल क्यूब, इज इट ट्रू, इज इट करेक्ट? आप फॉर्मूले को जरा गौर से देखें, क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग. तो बेसिकली आएगा क्या, जो पावर x की यहां पे बनती है वो पावर यहां पे आएगी और आपने इस पावर का टेबल बोलना है इस 6 तक. तो लिहाजा 3 2s are 6 यानी 2 बाहर आएगा
और 3 जो है वो इनसाइड पे आएगा, यानी ये वाली टर्म बिल्कुल इस टर्म को टैली करनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, वाई क्यूब एज इट इज, प्लस वाई क्यूब और इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यानी मैंने इसे फार्मूला नंबर 3, आप गौर से देखें, फार्मूला नंबर 3 की राइट हैंड साइड, फार्मूला नंबर 3 की राइट हैंड साइड को गौर से देखें, ये लिखा हो आपके सामने, ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली है। तो जब हम इसे क्लोज करके इस क्यूब के फॉर्मेट में लाएंगे तो ये बनेगा x टू द रेज पावर 3 होल क्यूब, साइन ये वाला माइनस y क्यूब होल पावर 3, यानी ये आंसर आ जाएगा इसका। तो लास्ट स्टेप विल बी x टू द रेज पावर 3 3s are 9 minus y to the raised power 3 3s are 9. When there is a power of a power, both the powers are multiplied to each other. So dear students, in the last we can say that x to the raised power 9 minus y to the raised power 9 is the product of these two factors, and these two are the factors of x to the raised power 9 minus y to the raised power 9. So ये क्वेश्चन भी आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर रही होगी आपके माइंड में, कीपिंग इन व्यू द फॉर्मूलाज रिटन बिफोर यू पीपल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द व्हाइट बोर्ड। सो पार्ट नंबर 3, x minus y, x plus y, x square plus y square, x square plus xy plus y square, x square minus xy plus y square into x to the raised power 4 minus x square y square plus y to the raised power 4 bracket close। 1 2 3 4 5 6, there are total 6 factors। अब आपने सबसे पहले इन फैक्टर्स को रीअरेंज करना है इन अकॉर्डेंस विद द सेंस ऑफ दीज टू फार्मूलाज, यानी इनको फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 की सेंस जहन में रखते हुए, कौन सी सेंस, राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट, राइट हैंड साइड वाला जहन में रखते हुए आपने इनकी ग्रुपिंग करनी है। दूसरे लफ्जों में, आई वुड लाइक टू इनिशिएट x माइनस वाई, इसके साथ आपके ख्याल में यानी जो कंबाइन करेगा फैक्टर वो ये वाला करेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक चीज बन जाए। इसी तरह x प्लस वाई विल बी कंबाइंड विद दिस फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमारे 4 फैक्टर हो गए। अब हमारे पास 2 बच गए हैं, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द रेज पावर 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई टू द रेज पावर 4, ये आपके 2 ये वाले फैक्टर्स मिल गए। यानी पहले आपने इनको रीअरेंज करना है, कीपिंग इन योर माइंड द सेंस ऑफ दीज 2 फार्मूलाज, स्पेशली देयर राइट हैंड साइड्स को जहन में रखते हुए आपने इन्हें कंबाइन कर दिया। अब आप जरा गौर से देखें कि ये वाला जो फार्मूला आपका बन गया है, इसमें हम अगर चाहें तो एक स्टेप में आपको कन्वीनियंट के लिए एक और स्टेप लगा देता हूं, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, एब्सोल्युटली मैंने उस फॉर्मेट में लिख दिया इसको, ये एक चीज बन जाएगी। इसी तरह इसके साथ x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट
प्लस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये एक चीज आ गई। इसी तरह लास्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द रेज पावर 4 x2 का स्क्वायर माइनस x2 इंटू वाई टू द रेज पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आपका पूरा एब्सोल्यूट ये फॉर्मूट बन गया। अब हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करके इनके प्रोडक्ट लिख देना है। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये पहला फिनिश हो गया। अब इसके बाद ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी फिनिश हो गया यहां से यहां तक। और उसके बाद एक्स का क्यूब साइन प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये चीज आ गई। अब आपने इसके बाद x3 माइनस y3 इंटू एक्स टू द रेज पावर 3 यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स टू द रेज पावर 6 प्लस वाई टू द रेज पावर 6। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। वो नंबर 1 लिखा हुआ है कि अब हमारे पास इस हिस्से को अगर आप नंबर 1 की राइट हैंड साइड से टैली करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये वाली ब्रैकेट अभी उसी तरह से। नाउ इसके बाद this is the last step, x to the raised power 6 minus y to the raised power 6 into x to the raised power 6 प्लस y टू द रेज पावर 6। आखिरी स्टेप बच्चों रह गया इसका, दैट इज अगेन a प्लस बी और a माइनस बी। फिर उसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन ऑब्जर्व करेंगे और इस फॉर्मूले को कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। माइनस y टू द रेज पावर 6 होल स्क्वायर, सो इट विल बिकम x टू द रेज पावर 12 माइनस y टू द रेज पावर 12। This is the final product of all these factors। यानी इन 6 के 6 फैक्टर्स को 1 2 3 4 5 6 अगर आप इन सब को मैनुअली मल्टीप्लाई करें तो आफ्टर कैंसिलेशन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी x टू द रेज पावर 12 माइनस y टू द रेज पावर 12। तो आपने देखा है कि फॉर्मूले का यूज किया आप लोगों ने। तो दोबारा से फिर देखें कि पहले क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह से करना है, यानी सेंस रखनी है फॉर्मूले की कि x माइनस वाई है तो उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस वाई ये, और इसके साथ जो फैक्टर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी आप इस पूरे दोनों फैक्टर्स को पहले भी लिख सकते थे और इन दोनों को बाद में भी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये नंबर 3 पे ही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप देखें यहाँ पे एक्स टू द रेज पावर 4 प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द रेज पावर 4। यानी आपने इसके 3 डिफरेंट मेन ग्रुप्स बना दिए। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। अब इन तीनों ग्रुप्स के ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा फारिग हो गया। इसी तरह इसके ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा भी फारिग हो गया। उसके बाद इसकी जगह आ जाएगा x2 का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये पूरा भी आपका फारिग हो गया। अब इसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स 6 प्लस वाई टू द रेज पावर 6। अब फिर इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी
एंड ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो लिहाजा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर और एक्स टू द रेज पावर 6 प्लस वाई टू द रेज पावर 6 एज इट इज आएगा। अब ये भी बन गया पावर ऑफ ए पावर है एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 इंटू एक्स 6 प्लस वाई 6। अब फिर इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला फिर बन गया ए प्लस बी, ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स टू द रेज पावर 6 होल स्क्वायर वाई टू द रेज पावर 6 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स टू द रेज पावर 12 माइनस वाई टू द रेज पावर 12। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। और इसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज of this question number 15, 2x square minus 1 into 2x square plus 1 4x to the raised power 4 plus 2x square plus 1 into 4 times x to the raised power 4 minus 2 times x square plus 1. Now dear students, there are 4 different factors. So we have to rearrange these 2 factors. A plus b, a square minus ab, b square is equal to a cube प्लस बी क्यूब। मैं फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ इसी तरह, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हैं 2 सेंस। दीज आर द 2 मेथड्स दैट वी हैव टू यूज हेयर इन दिस क्वेश्चन। अब आप पहले सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे, इनके ग्रुप्स बनाएंगे। अब मैं पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ ये माइनस वाला अटैच होगा, यानी प्लस के साथ माइनस वाला, माइनस के साथ प्लस वाला। वो देखें मच क्लियर फ्रॉम द फार्मूला कि यहाँ प्लस है तो प्रोडक्ट में माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इनके प्रोडक्ट में प्लस आता है। लेकिन फाइनल जब आंसर बनता है तो इसी साइन को फॉलो किया जाता है, यानी ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन दरमियान में जो साइन आएगा प्रोडक्ट वाली टर्म का वो ऑपोजिट आता है। लिहाजा 2x स्क्वायर के साथ टर्म आएगी 4x टू द रेज पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1। ये हो गया पहला आपका ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक एक बन गया। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x to the raised power 4 plus 2x square or plus 1. Square terms are always with the positive sign. Keep it in your mind people. Square terms are always with the positive sign. The फर्क सिर्फ किसका आता है, प्रोडक्ट टर्म का साइन चेंज होता है। अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब आपने एक और स्टेप अवेल करना है, 2x स्क्वायर प्लस 1 एब्सोल्युटली उस फॉर्मेट में ले आना इसे, यानी 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर, ये ए है, ये बी है और ये बन गया ए स्क्वायर। अब साइन यहाँ पे चेंज होगा, माइनस ए यानी 2x स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये आपका पूरा हो गया फॉर्मेट इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला नंबर 1। फिर उसी तरह इसका भी फॉर्मेट 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपका फॉर्मूला नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड को देखें इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप इस लेफ्ट हैंड साइड को इससे टैली करें तो ये बिल्कुल टैली हो रहा है। अगर ए की जगह 2x स्क्वायर लगा दें और बी की जगह 1 लगा दें तो एब्सोल्युटली ये फॉर्म बन जाती है। अब हमने इन प्रोडक्ट को, इन दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट को एक सिंगल फैक्टर में लाना है,
तो वो बन जाएगा 2x² होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ये पहला आपका काम खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फिनिश हो गया। इसी तरह ब्रैकेट, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2x² होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद नाउ क्यूब लेना है तो 8x6 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 are 4 2 are 8 और पावर ऑफ ए पावर बोथ द पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, बेस विल रिमेन अनचेंज, प्लस 1 का क्यूब 1 और इसी तरह इसमें जो फैक्टर आएगा वो 8x6 माइनस 1। फिर वही फार्मूला बन गया बच्चों, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8x6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा इसका दैट विल बी 8 का स्क्वायर 64 x टू द रेज पावर 12 और 1 का जो स्क्वायर है वो बच्चों 1 ही रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोडक्ट, यू कैन से दैट दिस इज आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट है कौन से नंबर पे, ये 4th नंबर पे है और आंसर भी देख लेते हैं फॉर योर सेटिस्फैक्शन। इसका आंसर जो है वो क्या बन रहा है ताकि आप इंटायरली सेटिस्फाइड हो जाएं कि आंसर भी टैली कर गया है। तो 4.2 का यानी 15 का लास्ट पार्ट 64 x टू द रेज पावर 12 माइनस 1 और बिल्कुल ठीक है, ये आंसर उससे टैली कर रहा है जो बुक एंड पे दिया हुआ है। इन दिस वे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 4.2 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन अ सेंस। शॉर्ट क्वेश्चंस, तो जिस बच्चे के शॉर्ट क्वेश्चन पे ग्रिप हो जाती है पेपर्स में, एनुअल में, सेंडअप में, प्री बोर्ड में, उसके 36 मार्क्स जो हैं वो वहाँ से वो बच्चा ले जाता है और बाकी कुछ MCQs में और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बाद में देखेंगे। बहरहाल एडवाइस आपको ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है और इनको बार बार आपने प्रैक्टिस करना। और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस वीडियो को इनको आपने देखना है, रेगुलरली वीडियो लॉन्च हो रही है और इनके बारे में अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो तो आप कमेंट्स जो है वो फीडबैक थ्रू प्रिंसिपल साहिबा, थ्रू कोऑर्डिनेटर खादम साहब या किसी और सर के ज़रिए, मखसूस साहब हैं, इनमें से किसी के भी ज़रिए या मुलाजम साहब हैं, तो आप जो कमेंट्स हैं बच्चों इन अ पॉजिटिव सेंस वो आप ज़रूर रिप्लाई किया करें ताकि जो लेक्चर्स के अंदर कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है, बिकॉज यू नो दैट देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ताकि उसको हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों की समझ आए। थैंक यू वेरी मच।